Good morning, everyone. Yesterday, we have studied about series resonant circuit. In that case, L, C, and R means inductor, capacitor, and resistor were connected in series with an alternating source. In that particular case, we have studied that the current peak was I naught E naught by root over of R square plus XL minus XC, or we can say XL difference XC whole square. Alright, this was our peak in series resonant or series LCR circuit. So here we are going to study resonance in a series LCR circuit. For practicality, we can consider that when we use a radio receiver, means in general language a radio, we use tuning of a particular radio channel, that is FM 92.7 and 93.5 or this type of channels, or in TV channels we use particular channel to view our favorite programs. For that we select a channel by using tuning. Tuning is the method in which we select a particular frequency and reject all other frequencies. Consider, if I want to listen 92.7 FM, then what we will do? We will tune that particular radio receiver at 92.7 frequency, 92.7 megahertz. So what is this? What actually we are doing? We are not changing the frequency, we are actually changing the value of capacitance and selecting the particular voltage. So how this happens, this we will see in today's class. So series resonant circuit, I naught is E naught by root over R square plus XL minus XC whole square. So for resonance condition, resonance, I have already told you in previous class that resonance is a condition at which the current is maximum, the current through it or the current through the LCR circuit is maximum. So for current to be maximum, if I consider I naught when omega tends to 0, where is omega? I have already written in previous class that XL is omega L and XC is 1 upon omega C. So it is root over of R square plus omega L minus 1 upon omega C whole square of this bracket, this much. So when omega tends to 0, just because it is in multiply also in numerator, क्योंकि ओमेगा एल यहाँ पे है और ओमेगा एल ये डिवाइड में भी है, तो एक डिनोमिनेटर में भी बचेगा अगर हम सॉल्व करते हैं. तो when ओमेगा टेंड्स टू 0, तो भी आई नॉट टेंड्स टू 0 एंड ओमेगा टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी तब ये वाला रोल प्ले करेगा. अगर ये इनफाइनाइट हो जाता है तो 1/0 और 0 ऊपर, ठीक है ना. जैसे ये वाला है तो यहाँ पे इन्फाइनाइट रखेंगे तो इन्फिनिटी बनाएगा, ये रखेंगे तो ये 0 बना देगा, और ये नीचे इन्फिनिटी का मतलब ऊपर 0. तो दोनों ही केस में आई नॉट 0 की तरफ टेंड करता है व्हेन वी टेंड ओमेगा टू 0 एंड ओमेगा टू इन्फिनिटी. सो वी कैन नॉट टेक दीज टू वैल्यूज. सो फॉर करंट टू बी मैक्सिमम वी कंसिडर करंट is maximum when denominator is minimum in this case. But how denominator could be minimum? So for denominator to be minimum, this particular term could be 0. क्यों? अगर ये 0 होगा तो केवल R बचेगा, वरना यहाँ पे हम और छोटी वैल्यूज इसकी नहीं ले सकते हैं. So ओमेगा L minus 1 upon omega C is equals to 0. Then there will only be R in the denominator, or we can say solve it, omega square is equals to 1 by LC, or
omega is equals to 1 upon root LC. This will give the maximum value. This is the maximum, this is that particular frequency at which current is maximum. So this is the particular frequency at which current is maximum. This is called the resonant frequency और natural frequency of the, इसको क्या कहते हैं, resonant और natural frequency of that LCR circuit, of the LCR circuit, or we can say omega R. This we will represent omega R. इसको ओमेगा R से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि L और C की वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसके लिए ये ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C 0 हो जाए, क्योंकि हम L और C ही तो चूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको 2 पाई एफ आर कह सकते हैं एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाई रूट एल सी. सो और फॉर ओनली एफ आर दिस इज एक्चुअली द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ओनली 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी. Alright, so the current amplitude at resonance frequency will be, put this at 0, so it only remains r square in root over, just because it becomes 0, so omega naught by r. So current, maximum amplitude of current will be current amplitude will be I naught is equals to E naught by R. So this is the current amplitude. Alright, it means the current will be this much E naught by R at particular resonant frequency. So one more thing I am observing here, that resonant frequency is at resonance frequency the current depends upon the R. The peak value of current depends upon the R. Alright. So this is what resonant frequency is. Now what are some characteristics of a resonant circuit? See, characteristics, firstly resonance characteristics of a resonant circuit. See, firstly, I have seen when the current was maximum or the resonance occurs at which condition, omega L minus 1 upon omega C is equals to 0 or omega L is equals to 1 upon omega C, or we can say XL is equals to XC. This is the condition when resonance happens. Now, resonant frequency I have already written. The impedance is minimum just because current is maximum, और the impedance is minimum and purely resistive. कौन सा impedance काम कर रहा है, क्योंकि केवल Z की वैल्यू कितनी हो गई, Z is equals to कितना था impedance Z root over of R square plus XL minus XC whole square, but XL is equals to FC, so it is R square or R. So at resonance Z is equals to R, or impedance is minimum. Impedance is minimum and purely resistive. The current is in phase with the voltage, or the power factor is unity. Alright, so what is power factor? This I will tell you in next topic. Firstly, current is in phase with voltage just because only R is applied. So we have already know that in purely resistive circuit current is in phase with voltage.
Now the voltage across R is equals to the applied EMF. Obviously EMF के बराबर ही होगा voltage, क्योंकि और कोई ड्रॉप नहीं है. Now the series resonant circuit is also called an acceptor circuit. Why? At frequency the current becomes maximum and at particular frequency. So one more very important characteristic is this series resonant circuit is also called an acceptor circuit, just because it accepts at particular frequency and rejects all other frequency. All right, and the current is maximum at that particular frequency. So next is the sharpness or of resonance or quality factor. So what is sharpness of resonance? See, when we tune a radio signal, we usually want to search a particular frequency. If I say I want to tune with 92.7, it means at 92.7 we will easily listen and we will clearly listen that particular programs. But what about 92.6 and 92.8 frequencies? At that particular value we usually listen a very distorted voice of that particular signal. So हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जिसमें एकदम बहुत जल्दी से सिग्नल का ड्रॉप हो जाता है, उस पर्टिकुलर रेंज को हम अपनी बैंडविड्थ कहते हैं. ठीक है, तो शार्पनेस को पढ़ने के लिए क्वालिटी फैक्टर का जानना ज़रूरी है. तो क्वालिटी फैक्टर क्या है? The quality factor is also called a Q factor. The quality factor of a series resonant circuit is defined as the ratio of the resonant frequency to the difference in two frequencies taken on both sides of the resonant frequency, such that at each frequency the current amplitude becomes 1 by root 2 times the value at resonance frequency. तो अभी तो ये लैंग्वेज है, हम इसकी प्रॉपर इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है. देखिए, इफ आई हैव दिस ग्राफ, this particular axis tells the current amplitude or the maximum value of current. This shows the frequency जो हम चूज कर रहे हैं अपने से. ठीक है, तो हमको ये पता है कि रेजोनेंस कंडीशन में आई नॉट क्या होता है, ई नॉट बाई आर, ये पता है. यानी रेजोनेंस कंडीशन में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम चूज करते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC से, वेयर ओमेगा आर इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC. And that particular frequency when we choose, L and C will not govern I naught. I naught will be governed by R only. So R जितना छोटा होगा I naught उतना ज़्यादा होगा. मान लो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमको मिली ओमेगा R जिस पे रेजोनेंस हुआ. रेजोनेंस का मतलब करंट एम्पलीट्यूड जो था वो सबसे ज़्यादा मिला. ये है करंट का वो वैल्यू, और इस पर्टिकुलर के ठीक लेफ्ट और राइट पे रेजोनेंस नहीं होगा, तो यानी करंट का एम्पलीट्यूड तेजी से ड्रॉप करेगा. ठीक है, देखिए यहाँ इसको, यहाँ ज़ीरो नहीं, इस एक्सिस पे ज़ीरो. अब मान लीजिए कोई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही, यानी रेजोनेंस तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हुआ, लेकिन हमारा आर अगर छोटा है, इफ अवर आर इज स्मॉल, देन दिस पीक विल बी हायर, क्योंकि ये आई नॉट की वैल्यू को बढ़ा देगा. अब अगर आर थोड़ा बड़ा किया हमने तो ये पीक घट जाएगा, लेकिन रेजोनेंस इतनी ही वैल्यू पे होगा, क्योंकि एक बार रेजोनेंस हो गया तो हमारा करंट एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड हो गया, आर पे. नाउ इफ आर बिकम्स मोर लार्जर, देन दिस पीक बिकम्स smaller, peaks becomes earlier. So this is the value
at which R is lower and I naught is maximum. Here it is the moderate R, and here we can say higher R, moderate R. So we are changing the R here. When fixed frequency or fixed resonance frequency, the maximum value depends upon the, or the current amplitude depends upon the R. Now the resonant frequency is independent of R. फ्रीक्वेंसी तो इंडिपेंडेंट है ना, LC पे डिपेंड करती है, बट द शार्पनेस ऑफ पीक डिपेंड्स अपॉन R. द पीक इज हायर फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ R, दस द रेजोनेंस इज शार्प. रेजोनेंस, अब देखिए ये जितना ऊंचा होता जाएगा उतना ज़्यादा हम कहेंगे कि ये पॉइंट शार्प हो रहा है, मीन्स रेजोनेंस शार्प हो रहा है ना. सो द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस इज शार्प फॉर स्मॉल r एंड अ फ्लैट वन फॉर लार्ज आर. यानी रेजोनेंस को फ्लैट कब कहते हैं, जब आर की वैल्यू ज़्यादा हो. रेजोनेंस को शार्प कब कहते हैं, जब आर की वैल्यू कम हो. सो द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय ए कोफिशिएंट कॉल्ड द क्वालिटी फैक्टर. तो शार्पनेस क्या है, रेजोनेंस की शार्पनेस होती है कि वो कितना उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से लेफ्ट या राइट छोटी फ्रिक्वेंसी कोई जैसे ही रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से शिफ्ट करें तो हमारे आई नॉट ड्रॉप कितना जल्दी होता है. अगर आई नॉट ड्रॉप धीरे धीरे हो रहा है तो शार्पनेस कम है. अगर फ्रिक्वेंसी से थोड़ा भी वेरिएशन की है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से और जो हमारा आई नॉट है वो तेज़ी से चेंज हुआ, देन आवर रेजोनेंस इज शार्प. ऑलराइट, कि मतलब ये पीक जितना ऊंचा होगा शार्पनेस उतनी अच्छी होगी, ये पीक जितना कम होगा शार्पनेस उतनी खराब होगी. ओमेगा आर से वेरिएशन जितना कम होने पे और करंट उतना तेजी से वेरी कर जाए, देन दैट सर्किट इज शार्प. और रेजोनेंस से चेंज करने पे वैल्यू और करंट धीरे धीरे चेंज करे, देन शार्पनेस इज लेसर. सो दिस इज शार्पनेस. नाउ क्वालिटी फैक्टर अगेन. The quality factor of a series resonant circuit is defined as the ratio of the resonant frequency to the difference in two frequencies taken on both sides of the resonant frequency, such that at each frequency the current amplitude becomes 1 by root 2 times the value at resonance frequency. अब देखिए मैथमेटिकली क्या है. This is our graph. This is particular frequency at which resonance happens. This showing the omega and this showing the current. Now ये तो पर्टिकुलर वो जगह है जहाँ आई नॉट है. आई नॉट किसके बराबर है, ई नॉट बाई आर के. मान लीजिए ठीक थोड़ा ही फ्रीक्वेंसी इतनी कम की है कि आई नॉट इस साइड में लेफ्ट साइड में थोड़ी फ्रीक्वेंसी कुछ कम की है. इस पर्टिकुलर वैल्यू पे फ्रीक्वेंसी की इस पर्टिकुलर वैल्यू जिसको मैंने ओमेगा 1 कहा, यहाँ आई नॉट की वैल्यू हो जाती, आई की वैल्यू हो जाती है करंट की अपनी पीक वैल्यू का 1 बाई रूट 2. ठीक है, आई नॉट का 1 बाई रूट 2 हो जाती है. और इसी तरह इधर एक फ्रीक्वेंसी मिलती है, मान लीजिए इधर एक फ्रीक्वेंसी ऐसी मिलती है यहाँ पे ही, वो इक्वल ज़रूरी नहीं है. देखिए यहाँ पे वैल्यू आई नॉट इक्वल होना ज़रूरी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होगी. ये भी आई नॉट बाई रूट 2 है, यानी ओमेगा और आर से कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ाया या घटाया तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 वो फ्रीक्वेंसी हैं जहाँ पे करंट एम्पलीट्यूड का 1 बाई रूट 2 बचता है. करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1 बाई रूट 2. ठीक है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हमारी ये जो एडिशनल फ्रीक्वेंसी हैं ये हमारी UHF और VHF करते हैं. ठीक है ना, तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले रेंज की बात करते हैं. ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच का अंतर, क्योंकि देखिए हमने ये कहा है क्वालिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी, ये जो क्यू फैक्टर है ये एक रेशियो है. क्यू फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी to the difference of two frequencies at which the current amplitude becomes 1 by root 2 times the maximum value of the current. The current becomes 1 by root 2 times the amplitude of the current. ठीक है, तो Q factor of a series resonant circuit is defined as the ratio of the resonant frequency to the difference in two frequencies taken on both sides of the resonant frequency, such that at each frequency
द करेंट एम्पलीट्यूड बिकम्स 1/√2 टाइम्स द वैल्यू एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। इसको देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस दोनों ही साइड बराबर होता है, इसको डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले को भी डेल्टा ओमेगा से, देन दिस बिकम्स 2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा 2 विल बिकम 2 डेल्टा ओमेगा। वी आर कंसिडरिंग ओनली द डिफरेंस, नॉट द साइन, सो इट इज 2 डेल्टा ओमेगा एंड दिस इज व्हाट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। इसको क्या कहते हैं, ये तो हो गई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और नीचे वाले को ये जो 2 डेल्टा ओमेगा है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच का अंतर, इट इज़ कॉल्ड बैंड विड्थ। बैंड विड्थ आप सबने जनरल लैंग्वेज में सुना होगा कभी ना कभी, जब हम फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की बात करते हैं, जहाँ भी एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वहाँ पे उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड विड्थ। अब यहाँ एक और चीज़ दिख रहा है कि आई नॉट की वैल्यू कितनी बच रही है, 1/√2 टाइम्स ऑफ आई नॉट, तो आई नॉट की वैल्यू रखें ई नॉट बाई आर होती, इसका 1/2, ये हो गया वैल्यू, और ये तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। नाउ दिस ओमेगा 1 कैन बी रिटेन एज, क्योंकि ओमेगा 1 ओमेगा आर में से डेल्टा ओमेगा घटाने पे मिलता है, तो ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। एंड सिमिलरली ओमेगा 2 कैसे मिलता है, ओमेगा 2 ओमेगा आर में डेल्टा ओमेगा जोड़ दें तो ओमेगा 2 पहुँच जाते हैं, तो ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, दीज आर 2 फ्रीक्वेंसीज ऑल्सो, जहाँ पे 1/√2 हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये तो थी फ्रीक्वेंसी। सो बैंडविड्थ क्या होता है, यही पर्टिकुलर डिफरेंस, एंड इट बिकम्स 2 डेल्टा ओमेगा, आप माइनस करके देख सकते हैं, इट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो अब आप देखिए, जो क्यू फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना 2 डेल्टा ओमेगा कम होगा, ठीक है, यानी बैंडविड्थ उतनी कम होगी और उतना ही ज़्यादा शार्प हमारा रेजोनेंस होगा, ठीक है, क्योंकि जितना ये अंतर कम होगा उतना पीक ऊंचाई पे जाएगी और उतना शार्पनेस इसकी रहेगी, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए इसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा। नाउ द एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर, सो एज वी नो z इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर, दिस, बट एट रेजोनेंस z इज इक्वल्स टू कितना होता है, r, है ना, रेजोनेंस पे। तो एट ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे क्या होता था, आई नॉट, आई कितना हो जाता था, आई नॉट बाई √2 हो जाता था, तो ई नॉट बाई √2 आर हो जाता था। इसका मतलब जब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की बात करें तो ये जो इम्पिडेंस होगा, इम्पिडेंस ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे देखो ई नॉट तो नहीं बदलेगा, इट इज कांस्टेंट, यानी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे क्या हो रहा है, आर की वैल्यू √2 आर हो जा रही है, इम्पिडेंस z इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, √2 आर, ठीक है, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे √2 आर होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। सो एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 z इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू √2 आर एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इस वाले दोनों को दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, दिस बिकम्स आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी 1 अपॉन ओमेगा सी, ये कितना हो जाएगा, देखिए 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और जब रूट ले लेंगे तो प्लस माइनस r। तो अब यहाँ पे अब हम दो कंडीशन लेते हैं, एक प्लस r एक माइनस r, तो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी एक बार माइनस r ले लें और एक ले लें ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल्स टू प्लस r। तो अब देखिए यहाँ पे ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, पहले एक बार इन दोनों को जोड़ दें, एडिंग 1 एंड 2, ऑब्वियसली इसमें से ये तो हो जाएगा, राइट साइड वाले 0 हो जाएंगे जोड़ के, देन
एक बार जब हम इसको जोड़ते हैं, देखिए यहाँ ये सेम फ्रीक्वेंसी पे ऐसा नहीं हो सकता, तो हमें यहाँ ये कहना पड़ेगा कि माइनस आर कब होता है ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी पे और प्लस आर कब होता है ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी पे। हमने ये कहा क्योंकि माइनस आर और प्लस आर सेम वैल्यू पे नहीं हो सकता, तो ओमेगा 1 वाली वैल्यू पे माइनस आर और ओमेगा 2 वाली वैल्यू पे प्लस आर। नाउ एडिंग 1 and 2, सो दिस विल गिव ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, एल वाले को एक साथ ले रहे हैं, माइनस 1 बाई ओमेगा, यहाँ से 1 बाई ओमेगा 1 सी प्लस 1 बाई ओमेगा 2 सी ले सकते हैं, तो 1 बाई सी कॉमन ले लें, ये बन जाएगा 1 बाई ओमेगा 1 प्लस 1 बाई ओमेगा 2 एंड दिस बिकम्स 0 क्योंकि राइट साइड में तो 0 हो जाएगा। सो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एल माइनस 1 बाई सी, ये हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ऊपर और डिवाइड में आ जाएगा नीचे ओमेगा 1 ओमेगा 2, इट इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस वी कैन सॉल्व, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन ले लो, 0 हो जाएगा राइट साइड में, एल कॉमन यहाँ पे, ये बचेगा एल माइनस 1 बाई सी और ये हो जाएगा 1 बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2, जब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन ले लेंगे। अब इसमें से एल भी कॉमन ले लो, तो नीचे यहाँ एल सी आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 माइनस 1 बाई एल सी 1 बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 0, या फिर लिख सकते हैं 1 बाई एल सी इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 ओमेगा 2। दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब दोनों वो जो दो इक्वेशंस थी 1 और 2 उसको सब्ट्रैक्ट किए, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, देन वी विल गेट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी 1 को माइनस किया है 2 से, एल प्लस 1 बाई सी, उसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2, इट इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है। अब इसमें ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन ले लीजिए इस बार, ये बन जाएगा एल इधर रहेगा प्लस 1 बाई सी 1 बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये 1 बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2 हमने पीछे अभी देखा, उस वैल्यू को रख सकते हैं, देखिए 2r हो गया है, माइनस आर प्लस आर माइनस ऑफ माइनस आर, तो 2r। इस वाली वैल्यू से ओमेगा 1 ओमेगा 2 यहाँ रख दें 1 बाई एल सी, तो एल सी ऊपर जाएगा, सी सी कैंसिल आउट, एल प्लस एल 2l, तो यहाँ क्या बन जाएगा एल प्लस एल 2r एंड दिस बिकम्स ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है। यहाँ केवल 1 बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2 को यहाँ से उठा के रखा है पीछे इक्वेशन 3 से, तो ये 2l हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया राइट साइड में r बाई एल एंड इट बिकम्स ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इट इज एक्चुअली द डिफरेंस, ऑलराइट, दिस इज द डिफरेंस इन ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1, और यही तो हमको चाहिए था। हेंस क्वालिटी फैक्टर Q फैक्टर बिकम्स ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कह लें, या ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, बात एक है। हम यहाँ पे केवल डिफरेंस लेते हैं, आई एम अगेन टेलिंग यू, नॉट दी साइंस, सो इट बिकम्स ओमेगा आर एल बाई आर, यहाँ पे जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 यहाँ रखेंगे तो आर बाई एल रखेंगे, एल ऊपर जाएगा आर, तो दिस इज द क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो Q is equals to omega r L by r, this is the quality factor। और अगर हम इसी को अपनी फ्रीक्वेंसी के थ्रू निकालना चाहें, ओमेगा r इज इक्वल्स टू होता है 1 बाई रूट एल सी, है ना, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दें ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई एल सी। अब देखिए दोनों साइड अगर मैं यहाँ L से L बाई R से L से मल्टीप्लाइड और R से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई R से डिवाइड कर रहे हैं L से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ओमेगा रुके ओमेगा R इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट एल सी। अब मैं इसमें L बाई R से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो Q फैक्टर हो जाएगा 1 बाई R रूट ओवर L बाई सी। ये भी एक एक्सप्रेशन है क्वालिटी फैक्टर का। इसको हम फिर यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वालिटी फैक्टर यहाँ तक ओमेगा आर एल बाई आर यहाँ तक हमने देख लिया है सॉल्यूशन। ऑलराइट, थैंक यू।